Good morning, student. Welcome you all. So hope you all are very great. So as you all know that we already started this chapter, that is the Bagger, written by Anton Chekhov. We have already done the part one. So in the part one, we have read that in this chapter, the main character is the bagger, whose name is Luskov, and he was a bagging, and sometimes, not sometimes, every time he was lied in front of some people's. Whenever he bagged. So one day, a person who is advocate and his name is Sergei, उन्होंने उसको एक काम दिया बिकॉज ही जस्ट वांट हिम कि वो काम करे और उस काम के थ्रू वो एक बैगर से कमिंग इनटू अ वेरी गुड पर्सन. So we will see in this part what happened next in this particular chapter. So, good, give him half a ruble, said Sergei. So, as we saw in the previous part, that Sergei had realized his mistake कि जो पर्सन को उन्होंने काम दिया था कि इन द विंटर सीजन दैट वाज नॉट गुड बिकॉज ऑफ द सीजन एंड बिकॉज दैट पर्सन इट्स टू फीबल. So he realized, and after his cook, that is Olga, said कि सर हमने सारा जो wood cutting का काम है वो almost complete कर लिया है. So after that he said, good, give him half a ruble. Ruble is a monetary or the currency. So he said कि just half a ruble उनको दे दो. सर जो बैगर है उनको दे दो. If he wants to, he can come back and cut wood on the first day of each month. We can always find work for him. So he add on these lines in front of his cook, that is Olga, and he said कि if he wants or if he want to eager some work, so just tell him कि वो हर month की first day पर come and cut the wood for him, and we always find a work for him definitely. So on the first of the month, the waif. So what is the meaning of waif here? Waif is the homeless person, right? Who doesn't have any home to live. So made his appearance and again earned half a ruble, although he could barely stand on his legs. So as we all know that the bagger is not really good in physique, or we just say कि वो एक healthy person नहीं था. That's why वो half a ruble ही earn कर पाता था, because he came every month, every first month वो appearance देता था. That from that day on, he often appeared in the yard, and every time work was found off for him. So that day से वो कभी भी उस yard में, means जो wood cutting थी, जो shed था उसमें वो कभी नहीं दिखता था, because he did some other kind of job, like now he would shovel snow. So remember this thing, student, please. These lines may be asked in your examination कि what kind of job did by the Luskov, means who is the bagger here, and what kind of job given by the Sergei. All right, so this is the answer of these two questions. So now he would shovel snow, now put the wood shed in order, now beat the dust out of rugs and mattresses. So first क्या करता था normally वो shovel snow. Shovel snow means winter season था, obviously snow होगी वहाँ पे, तो just snow को clean कर देता था, जहाँ जहाँ snow थी उसको clean up, मतलब वो area clean कर देता था. Now put the wood shed in order. Wood shed in order, of course जो wood थी, जो wood cutting थी, जो wood shed होते थे, wood shed मतलब parts of the woods, उनको एक orderly place कर देता in a pile. Pile means होता है जब एक के ऊपर एक हम कोई चीजें रखते हैं. So now beat the dust out of the rugs and mattresses. It means rugs होते हैं जैसे हमारे आप लोग डोर मैट्रेस लगाते हैं ना, पायदान जिसे हम कहते हैं, एंड मैट्रेसेस लॉन्ग भी होती है एंड शॉर्ट भी होता है. उन पे जो डस्ट होती थी उसको जस्ट clean out करता था. And every time he received from 20 to 40 kopecks. I told you kopecks is the currency, a ruble, 100 point of ruble. तो क्या था, 20 to 40 जो kopecks थे वो हर टाइम वो रिसीव करता था, मतलब he got this much of money. And once even a pair of old trousers was sent out to
हिम। सो एक बार उसको क्या मिला था, जो ओल्ड ट्राउजर होते हैं जो सरजाई ने उनको दिया था। When Sergei moved into another house, he hired him to help in the packing and hauling of the furniture. So यहाँ पे क्या था, जब जो सरजाई था, सरजाई ने क्या किया कि उनको जस्ट मूव आउट करना था, मीन्स एक नए घर में, एक अनदर हाउस में उन्होंने मूव आउट किया, हायर्ड किया, एंड नाउ ही नीड सम पर्सन, नीड सम लेबर पर्सन। सो उनकी पैकिंग में और हॉलिंग में, हॉलिंग मीन्स क्या होता है कि शिफ्टिंग सम थिंग्स लाइक फर्नीचर, यहाँ पे फर्नीचर की शिफ्टिंग की बात हो रही है तो हम फर्नीचर ही बोलेंगे। तो पैकिंग और फर्नीचर की शिफ्टिंग के लिए उनको कुछ पर्सन्स की नीड थी। तो दिस टाइम द वेव अगेन द होमलेस पर्सन वॉज सोबर। सो हेयर द वॉज सोबर, सोबर इज नॉट means ki very delicate person, very kind person, very good looking person. No, here's a sober person is a very serious person, right? So here the wave means the बैगर, वो बहुत सोबर थी। आप सीरियस पर्सन, जैसे आप हिंदी में बोल सकते हैं काइंड ऑफ गंभीर टाइप के लोग। ग्लूमी, ग्लूमी मीन्स बहुत दुखी, सॉरोफुल, नॉट इन अ वेरी गुड मूड। And silent means he always in a very silent mode. He hardly touched the furniture and walked behind the wagons hanging his hat, not even making a pretense of appearing busy. So many time I told you he was a very very busy person, so he didn't touch single furniture. He just walked behind every पार्ट ऑफ द फर्नीचर, जस्ट हैंगिंग हैंड्स मीन्स अपना बो डाउन करके वो इधर उधर घूम रहे थे। नॉट इवन मेकिंग अ प्रिटेंस मीन्स नॉट इवन प्रिटेंडिंग कि वो काम में बिजी है, मतलब शो ऑफ भी नहीं कर रहे थे कि सिर्फ सरजाए को दिखाने के लिए वो प्रिटेंड करें, दिखावा करें कि वो बिजी हैं। ही ओनली शिवर्ड, शिवर्ड मीन्स कांपना। ही जस्ट ट्रैम्बलिंग, ही जस्ट शिवरिंग दैट टाइम, he was just shivering that time in the cold and became embarrassed. Embarrassed मतलब होता है when you are feeling insulting, ठीक है, you are feeling shameful, when the caterers jeered at him, when the other caters मतलब है when the other person, other employees jeered at him. Jeered means making fun of him for his idleness. Here the word idleness means free. जब sometimes your teacher whenever your teacher scold on you कि nobody can sit idle in the classroom, it means nobody can sit free in the classroom. Okay, किसी ना किसी के पास कुछ ना कुछ काम होना चाहिए। तो बेसिकली दिस इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड आइडलनेस। तो हिज फीबलनेस, फीबलनेस मीन्स कमजोरी, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ आपको। एंड हिज टैटर्ड फैंसी ओवरकोट, टैटर्ड मीन्स बहुत ज़्यादा फटा हुआ, नॉट इन अ गुड कंडीशन, और फेडेड कलर। तो जो ओवरकोट है, मतलब बेसिकली दे ऑल लाफ्ड एट बाय सीइंग हिज आउटर अपीयरेंस। ऑल राइट, सो आफ्टर मूविंग वॉज ओवर सरजाई सेंट फॉर हिम। तो अब सरजाई ने उसको बुलाया। वेल I am, so these lines said by the Sergei, who is advocate here in this chapter. So I am happy that my words have taken effect, he said, handling him a rubble. Here's for your pains. I see you are a sober and have no objection to work. What is your name? सो वेल हेयर सरजाई आस्क कि ठीक है, आई एम हैप्पी कि जो मेरे वर्ड्स है, वॉट एवर आई हैव टोल्ड यू कि तुम काम करो, डू समथिंग, डू वर्क, वो इफेक्ट कर रहे हैं। तो आई एम हैप्पी कि ऐसा सब कुछ हो रहा है। और उसको रबल देता है, बोलता है कि दिस इज़ नॉट फॉर योर डीड्स, डीड्स मतलब नॉट फॉर योर वर्क, दिस इज़ फॉर योर पेन्स। पेन मतलब जो भी तुमने दर्द सहा इन दिनों, उसके लिए है ये जो पैसे दे रहा हूँ मैं, नॉट फॉर योर वर्क बिकॉज यू डिडंट एनी वर्क। सो आई सी योर सोबर एंड हैव नो ऑब्जेक्शन टू वर्क। मैंने देखा कि तुमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है काम से। दैट्स इट, उसने इस लाइन से एंड किया। एंड एट लास्ट ही सेड कि टेल मी योर नेम, एंड ही सेड सर माई नेम इज लस्कॉफ। सी as a reader we know that here the beggar name is Laskov, but here the advocate means the Sergei don't know his name. Okay, so well Laskov, I can now offer you some other cleaner employment, can you write? So here at the end he said कि Laskov, अब मैं तुम्हें कुछ क्लीनर जॉब देता हूँ, मीन्स आई एम जस्ट ऑफरिंग यू सम क्लीनर जॉब, सम गुड जॉब, डिफरेंट फ्रॉम दिस काइंड ऑफ जॉब जो नॉर्मली तुम कर रहे हो। कैन यू राइट, क्या तुम लिख सकते हो? सो ही सेड यस सर आई कैन राइट। तो देन टेक दिस लेटर टू अ फ्रेंड ऑफ माइंड टुमारो एंड यू विल बी गिवन सम कॉपिंग टू डू। सो उसने जो सरजाए हैं उन्होंने कहा कि ये लेटर लो आप और एक मेरे फ्रेंड के पास जाना, कल जाना मतलब, और उनको ये लेटर दे देना।
राइट और वो फिर जो भी काम दे उसको जस्ट कॉपी करना है, बेसिकली तुम्हें सिर्फ लिखना है और ज़्यादा कुछ करना नहीं है, तो वर्क हार्ड। और इसके बाद में इन्होंने कुछ एंडिंग जैसे आप लोग कह सकते हो कुछ फेयरवेल लाइंस कही, लाइक वर्क हार्ड, डोंट ड्रिंक एंड रिमेंबर व्हाट आई हैव सेड टू यू एंड गुड बाय। सो बस एंडिंग उन्होंने इसी तरीके से की, मेरा नाम याद रखना, पीना नहीं है, और जो मेरे वर्ड्स हैं वो याद रखना एंड गुड बाय। सो pleased at having put a man on the right path, Sergei tapped Luskov kindly on the shoulder and even gave him his hand at parting. So these are some ending gesture when जब हम किसी से डिपार्ट होते हैं या किसी से कट ऑफ होते हैं या सेपरेट होते हैं, जो एंडिंग जेस्चर होते हैं दे वर एग्जैक्टली शोइंग दैट जेस्चर ओनली हेयर। तो वो हैंडशेक वगैरह करते हैं और जस्ट थिंक रिमेंबर, थैंक यू एंड ऑल ऑफ दैट। So Luskov took the letter and from that day forth came no more the yard for work. तो उस दिन के बाद से जो सर्जाई का जो यार्ड था, जो गार्डन एरिया था, उस पर कोई काम करने बेसिकली जो ये काम करने आ रहा था वो काम करने नहीं आता है। तो 2 years went by, तो यहाँ पे 2 साल बीत जाते हैं। Then one evening as Sergei was standing at the ticket window of a theatre paying for his seat, he noticed a little man beside. So here the word beside, see, beside, beside and besiddes. These two words, both words are look like a same, but it's not same word. Beside means the next, means who is next sitting beside, sit beside, next to her or him. And besides means के अलावा। Sometimes we said कि I love chocolates besides ice cream. It means मुझे chocolates के अलावा ice cream भी पसंद है। So सिर्फ एक S का difference है, तो don't be confused. Alright, so जब 2 years complete हो गए थे, तो एक evening में सर्जाई अपने टिकट थिएटर पे गया था to watch something, और अपने टिकट विंडो पे खड़ा था एंड पेइंग फॉर हिज सीट, अपनी सीट के लिए वो पे कर रहा था। एंड ही नोटिस्ड अ लिटिल मैन, अ वेरी शॉर्ट हाइटेड पर्सन को उसने नोटिस किया जस्ट नेक्स्ट टू हिम विद अ कोट कॉलर ऑफ कर्ली फर एंड वॉन सिल्कन कैप। तो उन्होंने देखा कि उन्होंने ऐसे कोट से कॉलर पहन रखा था। सिल्कन कैप मीन्स होती है फिश होती है, फिश की जो स्किन होती है उसके से कैप बनाई जाती है, उसको सिल्कन कैप कहते हैं। सो द लिटिल इंडिविजुअल टिमिडली आस्क्ड द टिकट सेलर फॉर अ सीट इन द गैलरी एंड पेड फॉर इट इन अ कॉपर कॉइन। वो जो लिटिल इंडिविजुअल था, इट मीन्स जो बैगर था लस्कॉफ, वो बहुत टिमिडली मीन्स बहुत डर के साथ कह सकते हैं टिकट सेलर से अपनी सीट के लिए वो उसने पे किया। पे किससे किया उसने? विद अ कॉपर कॉइन्स। लस्कॉफ इज दैट यू? क्राइड सर्जय। देन सर्जय आस्क्ड लस्कॉफ इज दैट यू? ये हो तुम, मतलब तुम ही हो। रिकग्नाइज इन द लिटिल मैन इन फॉर्मर वुड चॉपर। वो बिल्कुल उसको याद आ गया था कि ये वही, फॉर्मर मीन्स होता है अर्लियर, ठीक है, जो उसका पहला वुड, पहले जो उसके लिए काम करने आता था, वो बोलता है कि तुम ही हो ना जो मेरे लिए वुड चॉप करने कहते थे। हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, हाउ इज एवरीथिंग विद यू। सो दीज आर सम लाइन्स जो नॉर्मली हम जब किसी से मिलते हैं आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो हम बोलते हैं कि कैसे हो, सब कुछ कैसा चल रहा है, एवरीथिंग इज गुड और नॉट। सो हेयर द बैगर सेड कि येस सर, ऑल राइट, आई एम नॉटरी नाउ एंड पेड 35 rubles अ मंथ। सो ही सेड कि सर मैं यहाँ पे नॉटरी पब्लिक का आपने नाम सुना हो, कुछ गवर्नमेंट पेपर्स होते हैं, ऑफिशियल पेपर्स होते हैं जिसपे सील वगैरह लगती है। प्लीज़ गो एंड आस्क टू योर पेरेंट्स, वो आपको ईजिली डिस्क्राइब करेंगे व्हाट इज़ नॉटरी पब्लिक। सो वो नॉटरी में अब काम करता था एंड ही गॉट 35 rubles अ मंथ। 35 rubles उसको मंथ में मिल जाते थे। Thank heaven, that's fine. I am delighted for your sake. I am very, very glad, Luskov. You see, you are my godson in a sense. So now he said कि I am thankful to heaven. I am thanks to God कि तुम मुझे दिखे हो. I am very, very happy to see you. In a sense हम देखें तो you are my godson. अब godson अगर आप लोगों ने सुना होगा तो जैसे हम बोलते हैं ना, धर्म का भाई, धर्म का पिता, धर्म की बहन, like godson. तो इन्होंने क्या था, उसको godson माना। So I gave you a push along the right path, you know. Do you remember what a roasting I gave you? So he said कि तुम्हें पता है कि मैं नहीं, I am the only person and I was the one who pushed you कि तुम किस पे जाओ, एक सही जगह पे जाओ, सही काम करो। क्या तुम्हें याद है कि मैंने किस तरीके से तुम्हें रोस्ट किया था? I nearly had you sinking into the ground at my feet that day.
वो कह रहा है कि कैसे तुमने, मैं अपने पैरों पर लिया था। इट मीन्स जब उन्होंने पुलिस की बात करी थी, राइट, तो वो जो बैगर था वो डर गया था और उन्होंने अपनी सारी जो भी सच्ची बातें थी, जो भी उनकी लाइफ में ट्रुथ था, वो सब उनके सामने शेयर किया. That's why he said these kind of words. So thank you, old man, for not forgetting my words. So he said, means the Sergei said to the young person, the beggar, कि थैंक यू ओल्ड मैन. तो हेयर द ओल्ड मैन, इट डजंट मीन कि यहाँ पे वो ओल्ड हो गया है या वो बूढ़ा हो गया है या वो एज में ज़्यादा हो गया है. इट मीन्स वो बहुत पुराने टाइम से इनको जानते हैं, बहुत पहले से इनको जानते हैं. दैट्स वाई ही सेड कि थैंक यू फॉर ओल्ड मैन, कि तुम्हें मेरे वर्ड्स याद हैं. सो थैंक यू टू, सेड लस्कॉफ. लस्कॉफ ऑल्सो थैंक्स बोलते हैं. इफ आई हैडंट कम टू यू देन आई माइट still have been calling myself a teacher or a student to this day. Yes, by flying to your protection, I dragged myself out of a pit. So he said कि thank you sir, thanks to you कि you are the only one कि जिन्होंने मुझे उस पिट से, यानी उस गड्ढे से निकाला है, राइट. अदरवाइज मैं अभी भी, मीन्स स्टिल आई एम डूइंग द सेम थिंग कि समटाइम्स आई माइट बी अ टीचर और समटाइम्स स्टूडेंट्स. तो आई एम वेरी ग्लैड इन इट. मैं बहुत खुश हूँ. आई एम थैंकफुल टू यू एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू. Thank you for your kind words and deeds. Deeds means works. I'm very grateful to you and to your cook. So he said कि मैं आपके लिए तो grateful हूँ, but as well as to your cook, means ओल्गा के लिए मैं बहुत grateful हूँ, because God blessed that good noble women. God उस good noble women का बहुत ध्यान रखे, because she is a very good lady. She was a very good lady. Maybe she is. You spoke finely then, and I shall be indebted to you to my dying day. बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इट वॉज योर कुक ओल्गा हु सेव मी. सो कह रहे हैं कि ठीक है, उन दिनों आपने मुझे मेरी बहुत हेल्प करी, ये सब किया, बट स्टिल जो एक पर्सन था जिसने मुझ पर बहुत इफेक्ट दिया, दैट वॉज ओल्गा, जो आपकी कुक है, उसने मुझे लिटरली सेव किया. हाउ इज दैट? तो हेयर सर्जाई सेड कि ऐसा कैसे हो सकता है, ओल्गा कैसे कर सकती है, बिकॉज ही न्यू कि ओल्गा जो थी वो उससे बहुत हेट करती थी, उसे पसंद नहीं करती थी बेसिकली. So when I used to come to your house to chop wood, she used to begin, "Oh, you shot you, oh, you miserable creature." So he all time abuse him. Means sorry, she all the time abuse him. जो ओल्गा थी उसको हमेशा कुछ ना कुछ अब्यूजिंग लैंग्वेज बोलती थी. "Oh, you miserable creature" और "There is nothing for you but ruin." मतलब इस वर्ल्ड में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, तुम बर्बाद हो जाओगे, एंड ऑल kind of words. And then she would sit down opposite me and grow sad, look into my face and weep. और क्या करती थी वो, उसके जस्ट अपोजिट बैठ जाती थी, सामने की तरफ बैठ जाती थी और रोती थी. लिटरली उसको देखकर वो रोती थी और बहुत सैड हो जाती थी. "ओ यू अनलकी मैन, देयर इज नो प्लेजर फॉर यू इन दिस वर्ल्ड एंड देयर विल बी नन इन द वर्ल्ड टू कम." एंड शी सेड कि "ओ पुअर मैन, ओ अनलकी मैन" कि इस वर्ल्ड में, मीन्स इस लाइफ में, इस जो भी बर्थ हुआ है इसमें तुम्हारे लिए कोई प्लेजर नहीं है, और मे बी द नेक्स्ट वर्ल्ड ऑल्सो, जो नेक्स्ट वर्ल्ड है, जो नेक्स्ट बर्थ होगा, उसमें भी कोई हैप्पीनेस नहीं है तुम्हारे लिए. नथिंग हैपनिंग देयर फॉर यू. यू ड्रंकर्ड. ड्रंकर्ड मीन्स हु यूज टू ड्रिंक अ लॉट, जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो उसको ड्रंकेड बोलते हैं. जैसे पियक्कड़ हम हिंदी में बोलते हैं. "यू विल बर्न इन हेल." क्या कह रहा है कि तुम कहाँ जलोगे? नर्क में जलोगे. "ओह यू अनहैप्पी वन." एंड सो शी वुड कैरी ऑन कंटिन्यूसली. शी जस्ट अपने वर्ड्स को कंटिन्यू करती है और उसको लिटरली कर्स करती रहती है. "You know, in that strain, I cannot tell you how misery she suffered, how many tears she shed for my sake." तो वो सर्जाई से बोलते हैं कि सर मैं आपको बता नहीं सकता कि उसने कितना मेरे लिए सफ़र्ड किया, हाउ शी सफ़र्ड फॉर मी एंड हाउ मैनी टीयर्स शी शेड फॉर माई सेक. मतलब मेरे लिए कितने टीयर्स उसने बहाएंगे, आई कांट टेल यू, आई कैन नॉट एक्सप्लेन हिज वर्ड्स, सो her deeds actually. But the chief thing was she used to chop the wood for me. The main thing is, the major point is कि वो मेरे लिए लकड़ियाँ काटती थी. Do you know sir that I did not chop one single stick of wood for you? सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसने, मतलब मैंने आपके लिए कभी भी कोई स्टिक नहीं काटी थी. बेसिकली देखो, स्टार्टिंग में वो स्टिक काटने जाता था, वुड काटने जाता था वहाँ पे सरजाई के घर. बट नाउ सरजाई गॉट टू नो कि एक भी सिंगल जो लकड़ी थी डेंट कट बाय द ये बैगर. ठीक है, वो सब कौन करता था इसके लिए? जो ओल्गा थी वो. शी डिड इट ऑल. वाई दिस सेव मी, वाई आई चेंज, वाई आई स्टॉप ड्रिंकिंग एट द साइट ऑफ हर, आई कैन नॉट एक्सप्लेन. सो कह रहा था कि सर मैं आपको बता नहीं सकता, आई कैन नॉट एक्सप्लेन हियर कि मैंने ये सब चीज़ें, मतलब वाई आई एम चेंज टू,
ठीक है, वाई आई एम चेंज अ लॉट, मैं इतना बदल क्यों गया हूँ और मैंने ड्रिंक करना क्यों छोड़ दिया है, आई कैन नॉट एक्सप्लेन टू यू. आई ओनली नो दैट ओइंग टू हर वर्ड्स, आई मीन्स आई रिस्पेक्ट टू हर वर्ड्स, ओल्गा, ओल्गा के जो वर्ड्स है, एंड नोबल डीड्स अ चेंज टुक प्लेस इन माई हार्ट, मीन्स उसने अपनी एक जगह बदल दी है और उसने मुझे एक अच्छे रास्ते पर ला दिया. शी सेट मी राइट एंड आई शेल नेवर फॉरगेट इट, और मैं इसको कभी भूल नहीं सकता. हाउ एवर इट इज़ टाइम टू गो नाउ, एंड एट द एंड ही सेड कि सर अब मेरा टाइम हो गया है जाने का. लस्कॉफ बोर्ड मीन्स लस्कॉफ थोड़ा झुकता है, शुक्रिया अदा करता है एंड ऑल, एंड डिपार्टेड टू द गैलरी, एंड ही जस्ट मूव्ड अवे फ्रॉम द गैलरी. सो दिस इज द चैप्टर बाय एंटोन चेकॉव. This is the end of our chapters. I hope you all have must really like this chapter. So thank you for watching this video.